Okay, student. So today we will discuss about the sclerenchyma. Sclerenchyma is also a permanent tissue. Permanent means that is a group of cells, that's a tissue. So those cells are permanent. It is also simple. Why simple? Because sclerenchyma tissue will be made up of only one type of the cell. Although there is a variation in this sclerenchyma, unlike the parenchyma and collenchyma, they are not similar. They have variations. But if only the fibers will be present or the sclerids will be present, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फाइबर और स्क्लेरिड दोनों present हो. This is fiber, this is sclerid, this is fiber. So these two are not present anywhere, or these two are not working together as a unit. That's why it is a simple tissue. If I talk about other characters, it is not living, it is dead always, and it is thick. Okay, unlike the parenchyma and collenchyma, parenchyma was living, collenchyma was also living but becomes dead at the maturity. But the sclerenchyma is always dead and always very thick. It is much thickened as compared to the collenchyma, and that thickening even is of lignin. See, the chloroenchyma is also thick. Parenchyma was thin and living. Collenchyma was thick, slightly thicker than the parenchyma. But that thickening was not of lignin. वो thickening lignin की नहीं थी, ठीक है? But यहाँ पे thickening किसकी है? Lignin की. Suppose this is a parenchyma. It is living and very thin. Suppose this is collenchyma. These are the thicknings on the walls. And suppose this is the sclerenchyma cell. So it is very much thickened. Even that much thickened that we show it in a double membrane. Sclerenchyma को ऐसे double membrane दिखाया जाता है to show this as a thickening. So this thickening is of lignin because sclerenchyma is a dead tissue. Okay. Since it is dead, so it provides strength to the plants. Mechanical support, provide protection to the soft parts. And forms the hard parts in the plant. Any of the hard part, even from the very beginning, if I talk about a seed, okay, so the seed pod, this seed pod is sclerenchymatous because it is protecting the soft part, that is the embryo. Embryo, which is the future plant, it is very thin. So the seed pod is providing protection to that. That seed pod is formed from the sclerenchyma tissue. So it's very hard and dead tissue, which mainly functions for the forming the hard parts of the plant. If I talk about the coconut shell, okay, so the shell on the coconut is also sclerenchyma. If I talk about the walnut, the shell of the walnut is also sclerenchyma. So in this sclerenchyma, there are variations, sclerids or fibers that we will going to discuss later. But these are some common functions. Whatever be the type of sclerenchyma, there are two types, fiber and sclerids. All of are having same characters. Both sclerid as well as fibers are permanent, simple. They are always dead. They are always thick. They always provide strength, mechanical support, and protection to the soft parts, being hard parts itself. क्योंकि खुद hard है, इसलिए soft parts को क्या करते हैं? ये protection provide करते हैं. Clear है? Sclerenchyma क्या है? These are some characters which are we are comparing with the parenchyma and the collenchyma. Okay. So how the sclerenchyma is different from the parenchyma and collenchyma? That it forms only the hard parts. If I talk about pericycle, pericycle in the herbs may made up of the parenchyma, but pericycle in the advanced plants or the trees, the higher plants, so that is made up of the sclerenchyma. That is also thick. Sclerenchyma is represented like this: a hexagon and a ring in the center. Okay. There is the another thing, sorry, double layer. And for that thing, the sclerenchyma is shown like this, the double layer. This was the representation for xylem. Xylem is represented like this, a ring in the center and the hexagon, and sclerenchyma is shown like this.
a double layered hexagon, and we show the techniques. It represents its sclerenchyma. Okay, so this thing is clear about sclerenchyma. Some characters. Yes, sir. Next, we will talk about the variations or the types in sclerenchyma. So sclerenchyma may be of two types. The sclerids and the fibers. Okay, the sclerids and the fibers, these are only variations. It doesn't mean fiber may be a collenchyma or a parenchyma. This is sclerid is also sclerenchyma, fiber is also sclerenchyma. This is dead as well as this is dead. This provide protection to the soft part, this provide protection to the soft part. Okay, so characters are same, but their morphology is different. The sclerids are rounded, maybe elongated sometime, or maybe branched even. But generally most of the sclerids are rounded. Fibers are always elongated, having tapering ends. Tapering ends means नुकीले end होते हैं इनके, ठीक है? Like this. This is tapering end. This is the tapering end. Okay. So morphologically different है. Other than that, they are not different. So very firstly, we will talk about the sclerids first. Okay. First type of the sclerenchyma are sclerids. Sclerids are also known as stone cells due to their shape. Most probably, they are present in the plant in the shape of stones. They are rounded and similarly because they are hard, so they are called stone. As like a stone, they are hard. Suppose I talk about the shell of the coconut as well as the walnut. So that is kind of a stone because that is very thick and very strong. That's why they are called stone cells. So they are rounded, dead, lignified, hard, lumen is reduced. See, in a dead cell, all of the content, the endoplasmic reticulum, mitochondria, nucleus, because cell dead है, तो ये सब चीजें नहीं होंगी. All of these contents are absent. So only there is a presence of lumen at the places where were these all living cell organelles. The protoplasm was present. So that prior thing was not in the dead cells. किसी भी dead cell में these all things are not present. The nucleus, the DNA, Golgi bodies or anything else. उसकी place में क्या होता है? Lumen होता है. That open cavity between the lumen and cell wall, this space is vacant. If the lumen is broad, हो सकता है lumen बिल्कुल cell wall तक हो. Okay, इसके अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं है. अगर ये सेल लिविंग होती तो यही lumen protoplasm होता. The cell membrane, nucleus, Golgi body, nucleoplasm, everything. If the cell will be living, but if the cell is dead, there is nothing inside that. Okay, in the lumen. So between the lumen and the cell wall is always considered dead, whether the cell is living or not. Only the cell membrane and the inner content, which is jointly called protoplasm, that is considered living. So in the dead cell, there is no protoplasm, this open space. So this may be touched to the cell wall or it may be reduced. So how it will be reduced? It will only present in this corner or in this center. All of the space between is vacant. So in the sclerenchyma, particularly the sclerids, this lumen is very much reduced. Okay, why it is reduced? Because it is very thin or it is very narrow. Second thing, if we talk about the stone cells in 3D, here we can show only the rounded. But if we treat it is like a globe. Okay, so in the center of this is lumen. Okay, and lumen opens at the walls. See, these are the canals. Suppose a ball is there. I don't have any rounded thing.
Imagine there is a ball and that ball having pores on their walls. Suppose this is the ball, it is having pores on their walls. These pores are having pipes inside. And all of the pores, all of the pipes are joined in the center. Can you imagine this thing? Outer surface, जब आप देखेंगे, you can only watch a globe and a pores on that globe. If you pour any water or anything in these pores, they have a canal, and these canals are merging at the center. So these canals are called pit canals, and these pores are called pits. In anatomy, pit is a very important term. We will discuss in our next lecture that what exactly are the pits. Right now, the pits are only the pores present on the walls of anything. अगर इस डस्टर की वॉल्स पे, दिस इज अ वॉल, इस पे अगर पोर प्रेजेंट होता, ठीक है, होल होता, छिद्र होता कोई, दैट इज कॉल्ड अ पिट. ऑन सेम वॉल अगर इस वॉल पे होता तो भी पिट है. ओके, सो एनी स्ट्रक्चर वेदर इट इज अ सिलेंड्रिकल, वेदर इट इज अ ग्लोब और राउंडेड, द पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स आर कॉल्ड पिट्स. These pits are merging in the center. Center is called lumen, and the lumen and pits are connected by the canals. These canals jointly forming the lumen. So this thing is clear. Yes, everyone. Clear beta sclerites? Yes, sir. Second thing, देखेंगे walls भी बहुत ज़्यादा thick होती है. ठीक है, walls पे pores तो present है, ये pores हैं, and their walls are always thick. So they are kind of a stone cell because they are very hard. पत्थर की तरह बहुत hard होते हैं, इसीलिए इनको हम stone cells भी बोलते हैं. So these are the sclerites. Now we are going to discuss the type of sclerite. यहाँ तक सब clear है ना? Yes, sir. See, the most common form or the most existing or dominant form in the plants of the sclerites is called Bragg sclerite. Bragg sclerites, which we are calling the stone cells. This is the most common form that I have just drawn. The circular shape, the thick wall, the lumen is reduced, the pit canals. Actually, this is Bragg sclerite, the first type, which is called stone cell. Other than this form, some other form may also exist. So we will discuss them because this I have also discussed. Next one is the macrosclerite. See, the macrosclerites are kind of different thing than these stone cells. Macrosclerites are elongated but broad, not like fibers. Fibers are narrow. Okay, these are broad. We will show them double layered. It's a kind of a oval stone cell. Okay, the shape is not rounded, that is oval. Andakar jisko bolte hain, that shape. That becomes some elongated and broad. Similarly, the lumen is also present, but the lumen is not that much reduced, which was in stone cells. Okay, so it is also having pores in their walls. Suppose this is a cylindrical shape, so cylinder also may have the pores. So in the outer surface पे क्या होते हैं? Pores होते हैं. These pores are called pits. They are also having the pit canal, but that pit canal will be short. This is lumen. These are the thickenings. This is vacant space or empty space, and this line this is lumen. So lumen is not that much reduced. It is almost elongated and broader than the stone cells. Okay, clear? This is macrosclerite. The shape is elongated. Clear? With a rod shape है. देखो मैं क्लास में ना Mute it, दे mute. देता नहीं मुझे ना मेरी Yes, Shivani, please mute yourself.
Okay, third one. That is also based on the Done. shape. The osteosclerosis. 3. Third one is the osteosclerosis. Osteo word represents the. What does this word represent? Osteo. You all are biology student. What is the meaning of osteo? Bones. You can unmute yourself and tell. Yes, Anju, sweetie. क्या सर? What is the meaning of osteo? बोन से रिलेटेड. Bone से related. डाउट में रहता है ना, कॉन्फिडेंस में रहता है. Bone shape. बहुत सारे कार्टून्स में ना हड्डी दिखाते हैं, डॉग्स को जो ऑफर करते हैं ना, वो इस तरह की दिखाते हैं. अगर इसी शेप के स्क्लेरिड्स हों, bones will be thick. Okay, similarly lumen. Lumen will also be in the narrow center. ये vacant space ये lumen और ये cell wall lignified. So bone shaped sclerid को हम बोलते हैं osteosclerid. Okay, clear बेटे? कुछ स्क्लेरिड स्टार शेप भी होते हैं, ठीक है. स्टार शेप स्क्लेरिड्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोस्क्लेरिड्स. दीज आर काइंड ऑफ दिस. ठीक है, थिकन्ड होंगे. इनके भी वॉल्स पे बेटा पिट्स तो होंगी, वही पिट कैनाल होगी, सेंटर में आपका ल्यूमेन होगा. सिमिलर थिंग बट शेप वेरी कर रही है. ओके, इनको ब्रांच स्क्लेरिड्स या हम एस्ट्रोस्क्लेरिड्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें ब्रांचिंग है. ओके, लास्ट वन इज द फिलीफॉर्म स्क्लेरिड. जब एवोल्यूशन हम स्टडी करेंगे, आपने यू आर इन थर्ड सेम नाउ. इन द पेपर जिम्नोस्पर्म व्हिच इज द अनदर पेपर, यू विल स्टडी द एवोल्यूशन पैटर्न. तो वहां पे कुछ कैरेक्टर्स हम कंसीडर करते हैं दैट व्हिच कैरेक्टर अराइजेस फर्स्ट. ओके, लाइक एक्साइल प्लेसेंटेशन पहले आई थी या सेंट्रल प्लेसेंटेशन पहले आई थी. चलिए आउट ऑफ द सिलेबस हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की. ये बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है. 1 2 3 4 5 ये 5 लॉक्यूल्स हैं या 5 कार्पल्स हैं. इनमें ये ओव्यूल्स हैं. फ्लावर में ओव्यूल होते हैं, फ्रूट में यही सीड बन जाते हैं. टोमेटो आपने देखा होगा ना, एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है टोमेटो में, ठीक है. टोमेटो में 2 कार्पल्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. तो दिस इज एक्साइल प्रेजेंटेशन जब एक्सिस पे सारे प्लेसेंटा आके मिल रहे हैं. दिस इज सेंट्रल प्रेजेंटेशन. वही 5 ओव्यूल्स इस तरह से है, पर बेटा ये यूनिलॉक्यूलर है, एक ही लॉक्यूल है, एक ही कार्पल है. यहाँ पे 5 लॉक्यूल है, 5 चैम्बर है, 5 ही कार्पल है. इफ द इंटरनेट इज वर्किंग, यस सर. ओके गुड. लाइट चलेगी जैसे कंफर्म कर रहा था. सो दिस इज सेंट्रल प्रेजेंटेशन, दिस इज एक्साइल. तो आपको क्या लगता है बेटा, एक्साइल से सेंट्रल बनी है, सेंट्रल से एक्साइल बनी है? बताइए. एवोल्यूशन की बात करें, पहले प्लांट्स एक्साइल के आए होंगे या पहले सेंट्रल के प्लांट्स आए होंगे? सेंट्रल के से. पहले सेंट्रल, फिर धीरे धीरे प्लेसेंटा बना होगा ना. ऐसा ही अपीयर होता है ना बेटे, क्योंकि चीजें हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं. तो भाई ये सिंपल है, इसमें कोई प्लेसेंटा नहीं था, धीरे धीरे प्लेसेंटा बना. बट दैट इज रिवर्स. पहले एक्साइल प्लेसेंटेशन आई थी, फिर सेंट्रल बनने लगी कि आपके प्लेसेंटा लॉस्ट हुए, तब जाके एवोल्यूशन हुआ कुछ सालों में, क्योंकि एवोल्यूशन तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है. Similarly,
पहले आए थे बेटा स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स से बने फाइबर्स, ठीक है। एल्गी पहले आए, फिर ब्रायो आए, फिर टेरिडो आए, टेरिडो से सीड हैबिटेट प्रोड्यूस हुआ तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट बने, दैट इज जिम्नोस्पर्म। फिर काफी सालों तक जिम्नोस्पर्म ने राज किया, ठीक है, डायनासोर के टाइम में भी। जिम्नोस्पर्म्स में धीरे धीरे सीड जो है कवर्ड होने लगे, नेकेड नहीं रहते थे, दे बिकम एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में भी मोनोकॉट्स पहले आए, देन डायकॉट्स। सो सिमिलरली स्क्लेरिड फाइबर्स बनने थे, तो ट्रांजिशन जोन है ये। स्क्लेरिड्स जो फाइबर्स के जैसे दिखते हैं, एकदम नैरो स्क्लेरिड, इस तरह का स्क्लेरिड बेटा, ये पोर्स है, ठीक है, ये ल्यूमन है बिल्कुल रिड्यूस सेंटर में। तो उस तरह का स्क्लेरिड जो फाइबर से मैच करता है, अभी हम फाइबर में पढ़ेंगे, उनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म स्क्लेरिड। क्लियर है? पांचों तरह के स्क्लेरिड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइप ऑफ स्क्लेरिड्स: ब्रैक स्क्लेरिड, एक्रोस्क्लेरिड, ऑस्टियोस्क्लेरिड, एस्ट्रोस्क्लेरिड एंड फिलीफॉर्म स्क्लेरिड। दिस इज क्लियर टू यू? Yes, students? Yes, sir. Okay. Yes, yes, sir. So Okay, welcome again. Now we will talk about the fibers. Fibers are the another type of the sclerenchyma along with the sclerids. Sclerids we have discussed already. See, both of the sclerids and fibers are sclerenchyma, so the characters are common. They are permanent, they are dead, they are thick, they are lignified. The thing or the difference is that they are different in their morphology. Outer appearance में दिखते किस तरह से, उसमें वो क्या है, different है। Origin भी same रहेगा क्योंकि sclerenchyma भी permanent है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनी। Everything same, only the morphology is। फाइबर्स जो होते हैं क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, ये भी डेड है, थिक है, लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड समझते हैं, लिग्निफाइड थिक। But the thing, the difference is that they are long as compared to sclerids. Sclerids are not long; they are elongated. They are very narrow. Suppose this was a sclerid. This is not narrow. This is very broad. Suppose this is a sclerid. This is very broad. Okay. So sclerids were not narrow, but the fibers are narrow. They are long. They are having tapering ends. And of course, the pits are also present even on the fibers. So let's just draw a fiber, and these are very long. एक चीज आएगी ट्रैकीड, जब हम जाइलम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है दैट व्हाट आर ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स से लॉन्गर होते हैं फाइबर्स, क्योंकि फाइबर्स एज ए सिंपल टिश्यू भी है। सेकंड थिंग, फाइबर सेल जाइलम में भी प्रेजेंट होती है। जाइलम विच इज आल्सो ए टिश्यू, अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम में ट्रैकीड्स भी हैं, वेसल्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं और पेरेन्काइमा भी है। दैट्स व्हाई 4 टाइप ऑफ सेल है ना, 1 2 3 4, दैट्स व्हाई दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो फाइबर वहां भी होते हैं और इंडिविजुअली भी प्रेजेंट होते हैं। जब इंडिविजुअली एज ए टिश्यू एक्ट करते हैं कि फाइबर्स का ही ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं फाइबर स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। So let's just draw a fiber. These are very long, very narrow, tapering ends. These are the ends. These are not open. Open नहीं है, tapered है, ठीक है, narrow और बिल्कुल narrow है। This much is the diameter only. Second thing, इसमें ह्यूमन थोड़ा ब्रॉड करके दिखा रहा हूँ। सपोज नीचे नहीं दिखेगा। सपोज दिस इज अ फाइबर, ऑल्दो इतना ब्रॉड नहीं है, मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें ह्यूमन इस तरह से नहीं है स्क्लेरिड्स की तरह। इसमें ह्यूमन ब्रॉड है। पहले तो थिक नहीं दिखा देते हैं वॉल की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फाइबर्स भी वॉल क्या है, थिक है। फाइबर की वॉल्स भी थिक होती है। फाइबर एक सिलेंडर स्ट्रक्चर है बेटा, इसके फेस पे भी पोर्स होते हैं। अब जब आप इमेजिन करें 3D में, तो इसका फेस होगा, सपोज दिस फाइबर, ये भी फेस है, इधर भी फेस होगा, ये भी फेस होगा। तो इनके फेस पे है पोर्स, जिनको हम पिट्स बोलते हैं। ये सामने जो दिख रहा है ये भी तो फेस है, आपको अंदर थोड़ी दिख जाएगा इसमें, तो यहाँ पे भी पिट्स हैं, ठीक है, इस फेस पे भी पिट्स हैं। लेकिन ल्यूमन किस तरह से, इसका ल्यूमन है बिल्कुल एज पे, ये ल्यूमन है। इसमें ल्यूमन ब्रॉड है बेटा, नैरो नहीं है। तो ल्यूमन ब्रॉड है तो वैकेंट स्पेस क्या हो जाएगा, कम। ये जो एम्प्टी स्पेस है ये इसमें कम है, ल्यूमन ज्यादा है। ल्यूमन बिल्कुल वॉल तक है, जबकि स्क्लेरिड्स में क्या था, ल्यूमन इस तरह था, रिड्यूस था, बिल्कुल वैकेंट स्पेस ज्यादा था।
क्लियर है ये चीज? So finally, how the fibers will look like? This thing is clear to you? Give confirmation. Unmute yourself. बोलते नहीं हो, बोलने से कॉन्फिडेंस ही आता है बेटे, हेजिटेट मत किया करो। This is very narrow. This is the lumen touching even to the cell wall. The cell wall is thickened. Okay, and having pits. This is the front wall that we are seeing, and even on the side walls there are pits. So this is a fiber. A fiber in a longitudinal section. फाइबर जब आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तब आपको इस तरह से दिखेगा। एक इंडिविजुअल फाइबर के क्या कैरेक्टर्स हैं? दिस थिंग इज क्लियर? यस सर। अब एक चीज बताइए, अगर किसी सिलेंडर को ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए, ये एक सिलेंडर है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया जाए तो ये फेस कैसा दिखेगा आपको अपर साइड से? सर्कुलर। कोई एक डिस्क है, सीडी समझते हैं आप, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सिलेंडर और डिस्क में क्या डिफरेंस होता है? डिस्क की जो हाइट होती है बहुत कम होती है। बहुत सारी डिस्क को एक के ऊपर एक जब हम रख देंगे, ठीक है, तो वो क्या बनाता है? सिलेंडर बना देता है। तो एक सिलेंडर में जब आप कोई ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे थे तो आपको एक डिस्क ही तो दिखेगी, एंड डिस्क इज सर्कुलर। ओके, दिस इज जियोमेट्री, नॉट द बॉटनी। सिमिलरली, इफ दिस इज अ फाइबर, इस फाइबर को आप यहां से कट करते हैं, ठीक है, तो फाइबर एक तरह का कैसा स्ट्रक्चर है? सिलेंडर नहीं है, ठीक है, फाइबर एक तरह का हेक्सागन है। ये हेक्सागन था और ये 3D में है, नीचे तक के सारे एजेस ऐसे ही हैं इसके, ठीक है। तो फाइबर एक सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, हेक्सागन सिलेंडर है। तो जब आप फाइबर का टीएस करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन, तो फाइबर ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा, यानी ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को आप रख दें तो फाइबर फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली लाइक अ पेंसिल, पेंसिल पूरी राउंडेड नहीं होती, कुछ पेंसिल हेक्सागन होती है, ठीक है। तो जब आप पेंसिल का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो जो ऊपर से सरफेस देखेंगे, लाइक इसका टीएस करें तो ऊपर से आपको क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। कहीं से भी टीएस कर लीजिए, आपको रेक्टेंगल ही दिखेगा। तो सिमिलरली फाइबर का जब हम टीएस करते हैं तो इस तरह से दिखता है, ठीक है। फाइबर की जो ये वॉल थी बेटे, ये तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था, इस वॉल पे पोर्स है या नहीं है बताओ? पिट्स है इस वॉल पे? बिल्कुल है। तो जब आप ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो इसमें भी पिट्स दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पिट्स दिखाएंगे साइड वॉल्स पे। ठीक है, इमेजिन करिए नीचे तक ऐसे ही है, ये पूरा एलएस है, ये टीएस है। तो फाइबर एलएस में ऐसे दिखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन में ऐसे दिखते हैं। Okay, this is a character of single fiber. So how the fiber is differentiated from the sclerids? कोई बता सकता है स्टूडेंट? स्क्लेरिड से कैसे डिफरेंट है फाइबर? ल्यूमन ब्रॉड है सर। ल्यूमन जो है ब्रॉड है, इलोंगेटेड होती है सर। ये एलोंगेटेड है। पिट्स तो उन पे भी प्रेजेंट थे, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है, इनकी शेप या इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, डिफरेंट। अब बात करते हैं फाइबर। एक इंडिविजुअल फाइबर, एक सिंगल फाइबर सेल स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटे। एक सिंगल फाइबर क्या मजबूत है एज कंपेयर टू स्टोन सेल? एक सिंगल स्टोन सेल अपने आप में बहुत मजबूत है, बट फाइबर मजबूत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डिपोजिशन, वैकेंट स्पेस कम है ना, तो उसमें डिपोजिशन कम है। ल्यूमन स्टोन सेल का रिड्यूस होता था, इसलिए ज्यादा वो जो है, ठीक है, ज्यादा मोटे होते हैं स्क्लेरिड। बट फाइबर में ल्यूमन वॉल्स तक है, ठीक है, तो ये कम, ये क्या है आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कंपेयर टू स्क्लेरिड। बट जब ये क्या होते हैं आपके मैनी इन नंबर, देयर इज अ सेम यूनियन इन स्ट्रेंथ, ओके, एकता में बल है। दैट इज द सेम थिंग। जब फाइबर्स बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं ना, दे फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। इवन दैट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो रोप्स बनती है, जूट की रोप हो या आपकी नायलॉन की रोप हो, that all are the plant fibers,
एंड पार्टिकुलरली द फ्लोएम फाइबर्स, वो फाइबर जो फ्लोएम में मिलते हैं, जो फाइबर फ्लोएम में मिलते हैं उनको बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, फाइबर्स के बारे में अभी हम लोकेशन डिस्कस करेंगे, बहुत सारी लोकेशंस हो सकती हैं, बट दोस फाइबर्स व्हिच आर पर्टिकुलरली फाउंड इन द फ्लोएम आर कॉल्ड बास्ट फाइबर। इनसे रोप बनती है और रोप यू नो दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। रोप के भरोसे लोग माउंटेन में चढ़ जाते हैं। ठीक है, so when they are present many number they are very strong, that's why they provide strength to the plants। तो फाइबर्स देखिए नेटवर्क किस तरह से होता है फाइबर का। ये एक फाइबर है बेटा, एक फाइबर दूसरे फाइबर में इंटरलॉक होता है, ये एक फाइबर ये दूसरा फाइबर, ये तीसरा फाइबर, 1 2 3, दिस इज अनदर फाइबर। आप ध्यान से देखें अगर सेकंड फाइबर को, सेकंड फाइबर देखिए इंटरलॉक है, अकेला चाहे मजबूत नहीं होता, 1 इसको सपोज 6 कहते हैं, आई डोंट नो नंबर्स क्लियर है नहीं, मैं इंडिकेट कर देता हूं। ये फाइबर और ये फाइबर इस फाइबर को इंटरलॉक किए हुए हैं, देखिए सेकंड नंबर फाइबर ये नीचे की तरफ भी इंटरलॉक है इन दोनों फाइबर्स से। ये जो बीच वाला फाइबर है दिस इज इंटरलॉक फ्रॉम दिस एंड दिस एंड दिस। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न होते हैं फाइबर्स में, एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक होते हैं। जैसे इंटरलॉक होते जाएंगे पूरा नेटवर्क बन जाएगा फाइबर्स का। And this network of the fiber is very very strong that give protection to the plant, or even we can use that as a rope, जैसे मैंने अभी बताया फाइबर्स को हम यूज भी करते हैं। So why the fibers are very strong? This thing is clear। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है बेटे फाइबर के, ये सभी कैरेक्टर्स क्लियर है? Yes sir। Yes sir। फंक्शन मेनली क्या हो जाएगा, वही बेटे स्ट्रेंथ, जो स्क्लेरेंकाइमा के फंक्शन है वही स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट। जब जाइलम फ्लोएम में प्रेजेंट है तो वहां पे ये फूड और वाटर का पार्शियल कंडक्शन भी कराएंगे, नो डाउट। मेन नहीं है, केवल पार्शियल कंडक्शन। जिसे पानी जैसे ही रूट में आना शुरू होता है, ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम तक पहुंचने से पहले, वेसल्स तक पहुंचने से पहले फाइबर से होके भी गुजरता है, इसलिए पार्शियल कंडक्शन। अच्छा एक बात बताइए, फाइबर में पानी कहां से जाएगा? फाइबर तो क्लोज है दोनों तरफ से, इधर से भी पानी नहीं आ सकता, इधर से भी नहीं आ सकता। इसमें पानी प्रेजेंट जाएगा पिट्स के थ्रू। पिट्स प्रेजेंट ना, एक पिट में घुस के पिट कैनाल से होता है, दूसरी पिट कैनाल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्शियल कंडक्शन भी करते हैं। एक बहुत ही कॉमन फंक्शन है इसका और अच्छा फंक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्रिएट करते हैं, जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर है, ठीक है, जितना भी ज्यादा पानी है प्लांट के अंदर उसको सोख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, हाईली डिहाइड्रेटेड होते हैं, बहुत प्यासे होते हैं, डिहाइड्रेटेड है हाईली, तो ये उसको क्या करते हैं, सोख कर लेते हैं एक्सेस ऑफ वाटर। तो फ्लड कंडीशन में प्लांट को हेल्प भी करते हैं। दीस आर सम फंक्शंस। आई थिंक कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस आर क्लियर फ्रॉम द फाइबर्स। नेक्स्ट वन इज द लोकेशन ऑफ फाइबर्स। Fibers may be of two types depending upon the location. Xylem fiber and extraxillary fiber. Please mute कर लो। ठीक है, xylem फाइबर क्या पता चलता है नाम से? फाइबर्स फाउंड इन xylem, ओके। extraxillary fibers, fibers found anywhere else other than the xylem, फ्लोएम में मिले, कॉर्टेक्स में मिले, एपिडर्मिस में मिले, ठीक है, कहीं भी मिले other than xylem, those are called extraxillary fibers। other than xylem में भाई कॉर्टिकल हो सकते हैं जो कॉर्टेक्स में मिले, ठीक है, एपिडर्मल हो सकते, एपिडर्मल नहीं होंगे, कॉर्टिकल होंगे या पेरिसाइकल में मिल सकते हैं।
एंड एक्स्ट्रा जाइलरी में सबसे मेन होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। फाइबर फ्लोएम में भी तो मिलता है भाई, मैंने परमानेंट टिश्यू में बताया भी था। फ्लोएम में सीव, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स होते हैं। तो वो फाइबर जो फ्लोएम में मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिए, उनको बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। एक प्लांट होता है कैनबिस सैटिवा, भांग का प्लांट, ठीक है। कैनबिस जो है नार्कोटिक प्लांट तो है ही, नो डाउट, ड्रग्स तो बनते हैं। अदर देन दैट कैनबिस के फाइबर्स भी बनते हैं, ठीक है। अदरवाइज फाइबर यील्डिंग प्लांट में दो ही कॉमन है, एक तो हम कॉटन पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं जूट। फाइबर जनरली जिनको हम फाइबर बोलते हैं ना, हम कपड़ों से रेफर करते हैं फाइबर्स। तो फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट हम जनरली यही दो पढ़ते हैं, कॉटन या जूट। बट कैनबिस इज आल्सो ए फाइबर यील्डिंग प्लांट, ठीक है, हेम्प बोलते हैं। So this thing is clear that where the fibers are found in the xylem as well as the other than xylem. So what are some types in the extraxylary? Yes, anyone? Preeti, Renu. Extraxylary में क्या टाइप हो सकते हैं बेटे? नहीं आ रही। एक्स्ट्राजाइलरी फाइबर्स में मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? वो फाइबर जो जाइलम में नहीं मिलते, तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं उनमें? यस, एनी ऑफ द स्टूडेंट? क्या सर? बेटे जाइलरी फाइबर के अलावा एक्स्ट्राजाइलरी में कौन कौन सी लोकेशन हो सकती है जहां पे फाइबर्स मिल सकते हैं जाइलम के अलावा? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, जिनको कॉर्टिकल बोलेंगे, पेरिसाइकिल में जिनको पेरिसाइकिल फाइबर बोलेंगे, या फ्लोएम में जिनको बास्ट फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्लासिफिकेशन है जाइलरी फाइबर्स का। वो फाइबर्स जो जाइलम में मिलते हैं वो भी दो तरह के होते हैं बेटा, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स एंड फाइबर ट्रैकीड्स। ठीक है, लिब्रिफॉर्म फाइबर ट्रू फाइबर है, जाइलम के वो फाइबर जो सच में ही फाइबर्स हैं, सारे कैरेक्टर फाइबर्स वाले होंगे उनके, ठीक है, दैट इज लिब्रिफॉर्म फाइबर। वेरी सिंपल, जाइलम के वो फाइबर जो ट्रैकीड से मिलते हैं। अब जाइलम में एक अनदर तरह की सेल होती है ट्रैकीड, जो वाटर कंडक्शन करती है, तो उन दोनों का बीच का ट्रांजिशन जोन जो ना पूरे फाइबर है ना पूरे ट्रैकीड है, ठीक है फाइबर काम ट्रैकीड का करने लग गए, दोज आर कॉल्ड फाइबर ट्रैकीड्स। सो टू टाइप्स ऑफ द फाइबर, द लिब्रिफॉर्म फाइबर्स एंड फाइबर ट्रैकीड्स। सो परमानेंट टिश्यूज, यस प्लीज सर लिब्रिफॉर्म फाइबर रिपीट करना। लिब्रिफॉर्म फाइबर होता है बेटा ट्रू फाइबर, वो जाइलम के वो फाइबर्स जो सच में ही फाइबर है, ठीक है, जिनके अंदर वो सारे कैरेक्टर क्या, हार्ड, लिग्निफाइड, थिक, एलोंगेटेड, टेपरिंग एंड हैविंग पिट्स ऑन द बॉल, जिनमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो सच में फाइबर है, वो जाइलम के फाइबर्स लिब्रिफॉर्म फाइबर्स कहलाते हैं। जाइलम के वो फाइबर जो ट्रैकीड से मिलते हैं, जो ना तो पूरे ट्रैकीड है ना फाइबर है, वो फाइबर ट्रैकीड्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके सर। सो हायरार्की की बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। इन द प्लांट टिश्यूज थ्री टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, secretory or secretory. In the meristematic, there may be different bases: plane of division, function, origin, and position. Position in the plant body, like apical, intercalary. In the permanent, it is simple and complex. In the simple, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. In the sclerenchyma, we are having sclerids and fibers. Okay, in the fibers we are having xylary fibers or extra xylary fibers. In the extra xylary fibers we are having cortical fibers, pericycle fibers and
phloem fibers. Sclerids, we are having brachyclerate. Those are only the thickening patterns or the variations in the shape. In the complex, we are having xylem and phloem. Secretary we have just not discussed, that are the separate classes like lactiferous tissue और glandular tissue. कुछ latex secreting tissues होते हैं, कुछ glands होती हैं जिनके अंदर से कुछ secret होता है, ठीक है? Glands you all know they are very abundant in the animals. Even in the plants, glands are also present. Like digestive gland. Plant में भी digestive gland है कहाँ पे? जो pitcher plant होते हैं, ठीक है? Insectivorous plant जो कीट पक्षी पौधे होते हैं, they digest their food. There is a requirement to digest that food. क्योंकि वो क्या है? Parasitic plant है. तो उनको फूड खुद नहीं बना सकते, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ चाहिए, तो वो उस इंसेक्ट को जिसको उन्होंने कैच किया है उसको डाइजेस्ट करते हैं, सो दैट ग्लैंड्स हेल्प्स इन देयर डाइजेशन. सो ग्लैंडुलर होते हैं और लैटिसिफेरस होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स. सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड नाउ. आई थिंक दैट ऑल शुड बी क्लियर टू यू. ओके? Yes, sir. Good.